आज हम लोग कर रहे हैं गाइडेंस नोट ऑन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1, जिसमें हम पूरा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड और उसके ऊपर जो इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट दिया उसको एनालाइज करेंगे। प्रीता और रूपाली साथ में शुरू करो। Guidance note on meeting of the board of directors based on revised Secretarial Standard 1 effective from 1st October 2017 and amended up to 31st December 2020. We have preface. Members जिन्होंने SS1 draft किया. Preface to revised edition. Contents. शुरू हाँ, यहाँ से चालू हो रहा है बैग अपना powers to be exercised at board meetings. ऊपर एक नंबर पे शुरू। The Secretarial Standard on meeting of the Board of Directors, formulated by the Secretarial Standards Board (SSB) of the Institute of Company Secretaries of India and issued by the Council of the ICSI, has been approved by the central government. Adherence to SS1 is mandatory in terms of subsection 10 of section 118 of the Companies Act 2013. The first version of SS1 was applicable to meetings of the Board of Directors and its committees, in respect of which notices were issued between 1st July 2015 to 30th September 2017. तो SS1 जो है उसके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का है, काउंसिल ने इशू किया, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। दैट मींस इट इज एज गुड एज कंपनीज एक्ट। और इसका जो सेकंड वर्जन है, पहला वर्जन 2017 तक वैलिड था, तभी तो हमारा 17 पास होता है, अभी ये जो वर्जन है एप्लीकेबल होगा। ओके, the revised version of SS1 applies to meeting of the Board of Directors and its committees, in respect of which notices are issued on or after 1st October 2017. SS1 prescribes a set of principles for convening and conducting meetings of the Board of Directors and matters related thereto. This guidance note sets out the explanations, procedures, and practical aspects in respect of the provisions contained in revised SS1, effective from 1st October 2017, to facilitate compliance thereof by the stakeholders. ये जो रिवाइज वर्जन है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और उसकी कमेटियों की मीटिंग पे एप्लीकेबल है। जब भी आप कोई कर रहे हो या कमेटी मीटिंग, तो आपको इसको कंप्लाई करना है। ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिंसिपल मीटिंग कैसे की जाएगी रिलेटेड मैटर के लिए, और गाइडेंस नोट उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देते हैं। ओके, बैकग्राउंड। The Act empowers the board to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is authorized to exercise and do, except those powers which can only a general meeting. The powers of the board are, however, subject to the provisions contained in the Act, other statutes, as well as the memorandum and articles of association of the company, or any regulations not inconsistent therewith, and duly made thereunder, including regulations made by the company in general meeting, section 179 of the Act. तो कंपनी के बोर्ड को कहता है कि जो भी कंपनी एक्सरसाइज कर सकती है पावर, वो सब तुम कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर वो चीजें जो केवल कंपनी जनरल मीटिंग में कर सकती है। और बोर्ड की पावर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट, अदर लॉ, मेमोरेंडम, आर्टिकल, उसके अंदर बने हुए रेगुलेशन, इंक्लूडिंग रेगुलेशन मेड इन द जनरल मीटिंग, सब्जेक्ट टू बोर्ड कैन एक्सरसाइज देयर powers taken. All the powers vested in directors are exercisable by them collectively, acting together, unless such powers have been delegated to one or more directors by the board. The board may also delegate any of the powers exercisable by it to a committee of directors, the articles of association of the company, or members of the company in a general meeting may also authorize any of the directors or a committee of directors to exercise such powers as may be authorized by means of a resolution passed at a general meeting.
पढ़ो ऊपर क्या हाँ, मतलब क्या कर बेसिकली एक कुछ पावर्स है which the directors नहीं ना, exercise and पावर डायरेक्टर को जो भी पावर है वो हम्म कलेक्टिवली एक्सरसाइज कर सकते हैं एज ए बोर्ड, हम्म प्लस हम्म बोर्ड ने डेलीगेट किया हो, फिर हम्म बोर्ड जो है वो कमिटी को भी डेलीगेट कर सकती है पावर्स, हाँ फिर आर्टिकल में या फिर मेंबर जनरल मीटिंग में किसी भी डायरेक्टर या कमिटी को पावर्स ऑथराइज करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकते ओके, इसको हाईलाइट हैं। कर देती हूँ। बस जनरल मीटिंग, ठीक है। तो अगर पावर किसी शेयर होल्डर हम्म में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ऑथराइज है तो वो गलत हम्म नहीं है, ओके, ये एनी ऑफ द हाँ डायरेक्टर में कवर हो जाएगा। ठीक है। Power to be exercised at board meetings. The board of directors of a हम्म, company shall exercise certain powers on behalf of the company only by means of resolutions passed at a meeting of the board and not by a resolution passed by circulation. A list of powers of the board to be exercised at the board meeting is given in Annexure 1A. ये क्या कह रहे हैं कि कई पावर्स है जो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में एक्सरसाइज करनी है, उनके लिए आप सर्कुलर पास नहीं कर सकते, तो वनवे में जाओ और देखो कौन पावर। हाँ, Annexure 1A. कंट्रोल एफ मार वरना एकदम एंड हाँ करो। हाँ, Annexure 1A. Annexure 1A. Powers of the board to be एक एक पढ़ exercised at. सर आपकी आवाज कट रही है। एक पढ़ना और समझाना कि वो क्या पावर है, फिर आगे बढ़ना एक एक करके। ठीक है। Powers of the board to be exercised at board meetings as prescribed under the act. To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares. तो अगर ये partly paid shares है और हम्म, उस पे calls in arrears है, so board can pass a resolution calling the shareholders to pay the balance money. फिर to authorize buyback of securities under section 68 of the act, मतलब कोई भी बायबैक buyback कर ओपन मार्केट से या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तो दे कैन पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। बायबैक होता क्या? shares are bought back by the company from the shareholders. ठीक है, क्योंकि जनरली हम्म अलाउड नहीं है, लेकिन रेगुलेशन में आप कंपनी अपने शेयर खुद खरीद सकती है और एक्सटिंग्विश कर सकती है, सेक्शन 68 है हम्म इसके लिए। तो जब भी हम्म बायबैक का रेजोल्यूशन पास करना है तो मीटिंग में ही होना है, यू कैन नॉट ओके, पास बाय। हर लाइन के बाद आपको ये बोलना कि ये चीज आपको मीटिंग में ही करनी है, सर्कुलर से नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है। फिर to issue securities including debentures whether in or outside India, मतलब any debentures, equity shares, preference shares to be issued, or debentures either in India or outside India, resolution has to be passed only at the board meeting and not by resolution by circulation. ठीक है, तो वर्ड देख लो, इशू है, अलॉटमेंट नहीं है। दैट मीन्स हम्म आप इशू करने के लिए आपको बोर्ड मीटिंग चाहिए, लेकिन अलॉटमेंट करने के लिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है। To borrow monies, the above clause shall not apply to borrowings by a banking company from other banking companies or from Reserve Bank of India, the State Bank of India, or any other banks established by or under any act. Explanation 1 to subsection 3 of section 179 of the act. मतलब इन कुछ लोन उठाना हो कंपनी को, कोई टर्म लोन या कोई तो कोई भी पैसा आपके पास कर सकते हो, सर, ले नहीं सकते हो। बोर्ड, हाँ तो बोर्ड रेजोल्यूशन has to be passed in a meeting and not through resolution by circulation. तो अगर किसी भी तरह का कोई भी पैसा कंपनी को लेना है, बोरो करना है, तो उसको मीटिंग में पास करना पड़ेगा। Yes, but इसमें इस clause में there is an exception. First बैंक को exception, नोट, जब वो bank, अदर बैंक yes. पैसा, और दूसरे अभी जब कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो Hmm. मेन जो टोटल अरेंजमेंट है उसको Hmm. बोरोइंग बोलेंगे, इसके अंदर की Yes. एक्चुअल ट्रांजेक्शन को नहीं बोलेंगे। लाइक अगर आपने बैंक से Okay.
ली तो पहले 1000 रुपये विड्रॉ किया तो 1 बोरोइंग 2 बोरोइंग 5 करोड़ की लिमिट लेने को बोरोइंग बोलेंगे। ओके, ओवरऑल लिमिट। तो वो जो पर्टिकुलर चीज है कि जो ओवरऑल लिमिट है वो बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन से ही होनी चाहिए, इंडिविजुअल विड्रॉल नहीं चाहिए। टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी नए वेंचर या नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो तो रेजोल्यूशन भी आपको अपना बोर्ड पैसा म्यूचुअल फंड आप सर्कुलर रेजोल्यूशन से कर सकते नहीं, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से। हैं। नेट कंपनी को एग्जम्पशन है, बाकी इसमें नहीं। ठीक है। To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans. ये 186 की पावर है basically, where board resolution has to be passed if you are giving any loan or any guarantee or security. फिर to approve financial statement and the board's report. ये board के resolution के through ही pass हो सकती है। Diversify the business of the company, अगर expand करना हो, enter करना हो area. Yes. To approve amalgamation, mergers or reconstruction. अगर कोई कंपनी को amalgamate करना है, reconstruction या merger करना है, so only board resolution and not नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं करना। yes. To take over a company or acquire, controlling a substantial stake in another company. ये basically take over, अगर देखे तो take over code के अंदर अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी को acquire कर रही है तभी no resolution is allowed by circulation. Any other matter which may be prescribed, which at present are as follows: to make political contributions, मतलब किसी political party को पैसा देना हो, to appoint or remove any KMPs, कोई MD, WTD, CEO, CFO का appointment or renewal, or to appoint internal auditors or any secretarial auditors. Rule 8 of the company's meeting of the board and its powers rules 2014, read with amendment thereto, dated 18th March 2015. Fair. The acceptance by a banking company in the ordinary course of its business of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise, or the placing, or placing of money. जनता के पैसे लेता है और फिर आगे नील करता है, उसके बाद उन्हें रेजोल्यूशन पास करता रहेगा। हाँ, तो इसलिए एग्जम्पशन उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, आगे फिर फर्स्ट पेज पर ही नहीं वहीं पे खत्म नहीं हुआ। अच्छा, वहीं पे कंटिन्यू। Appointment of director to fill a casual vacancy. If the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his term of office expires in a normal course, the resulting casual vacancy may, in default of and subject to any regulations in the articles of the company, be filled by the board of directors at a meeting of the board, which shall be subsequently approved by members in the immediate next general meeting, provided that any person so appointed shall hold office only up to the date up to which the director in whose place he is appointed would have held office if it had not been vacated. Subsection 4 होगी डायरेक्टर के ऑफिस में, तो वो भी आपको मीटिंग में ही भरनी है, रेजोल्यूशन सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं भर सकते। ओके, तो फिर कैजुअल वैकेंसी। फिर एनेक्सर 1B, अब इसको नंबरिंग कर लो, कितने पॉइंट है जिसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है, कितने लिखे हैं इसमें? इसमें अलग-अलग पॉइंट है 13। हाँ, अलग पॉइंट्स है तो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने? नहीं कुछ टाइप नहीं करना सिर्फ। अच्छा, ओके 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट्स है सर। 14 इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी। हाँ, मतलब नहीं, ये के में मैंने तीनों को अलग से पकड़ा है। हाँ, HIJ 10 11 12 13 और फिर 14th लास्ट पॉइंट कैजुअल वैकेंसी। 14 आइटम ऐसी हैं कंपनी एक्ट में जिनके लिए आप सोल्यूशन नहीं पास कर सकते। यस, अब उसको एक समरी में एक सांस में बोले तो कॉल्स करना, जाओ पर मैं आपको रिमाइंड करूँ।
शेयर्स के ऊपर कॉल करना, बायबैक करना, सिक्योरिटी इशू करना, फंड इन्वेस्ट करना, लोन देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना, डाइवर्सिफाई, अमालगमेशन, मर्जर, corporative consultation, appointment, removal of KMP, internal auditor, secretarial auditor appointment, and अपना कैजुअल रिटर्न। ये 14 पॉइंट्स जो है, जब भी कोई पॉइंट आएगा बोले सर्कुलर से करना है तो सीधा आपका आंसर है ना, बोले सेक्रेटरी स्टैंडर्ड और कंपनी बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यस, चलो ऊपर ठीक है, जहाँ पे हमने फर्स्ट मेन चालू किया यहाँ पे power to be exercised by unanimous consent. Certain powers of the board shall be exercised by resolutions passed at meetings with the consent of all the directors present at the meeting. A list of powers of the board to be exercised by unanimous consent is given in Annexure 1C. तभी आपने ऊपर पढ़ा ये मीटिंग जो पावर्स थी वो बोर्ड मीटिंग में, उनमें से कुछ पावर्स हैं जो सिर्फ यूनानिमस कंसेंट, सबके सब हाँ करेंगे तभी कर सकते, तो नहीं कर सकते। अगर एक ने भी डिसेंट कर दिया तो आप वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। तो अनेक में जाओ, देखो कि 1B की कौन सी आइटम है जिसमें 100% कंसेंट। Power to be exercised by unanimous consent. Power to appoint or employ a person as its managing director under section 203 of the Act, if he is the managing director manager of one and not more than one other company. तो अगर एक आदमी किसी ऑलरेडी कंपनी में एमडी या मैनेजर है, उसको आपको अपनी कंपनी में एमडी बनाना है, तो यूनानिमस यस, ये 1B में 173 केएमपी के अपॉइंटमेंट के अंदर। फिर पावर टू इन्वेस्ट और टू गिव 1B से लोन्स 1C निकलेगा ना, पर ये स्पेसिफिकली उसी के लिए ना, if he is the manager of one and not more than one other company. ठीक है, so power to invest or to give loans or guarantee or security under section 186(5) of the Act. तो अभी ऊपर आपने कहा था पावर टू इन्वेस्टमेंट और गिव लोन गारंटी जो है वो बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए, और उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, कंसेंट हैज बीन पास यूनानिमसली लिखा होना चाहिए मिनट्स में। ओके, power to remove trustees आइटम में कि दिस रेजोल्यूशन हैज बीन पास unanimously. ठीक है, means all directors must agree to it. All directors present must agree. Okay, all directors present. Power to remove trustees for the depositors after issue of circular or advertisement and before expiry of his term. Rule 7(4) of the Company's Acceptance of Deposit Rules 2014. सर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने एक ट्रस्टी अपॉइंट किया है सिक्योरिटी को मॉनिटर करने के लिए, उसको इशू करने के बाद और टर्म से पहले हटाना है तो भी आपको यूनानिमस कंसेंट से हटाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं मैं ये पॉइंट समझी नहीं, मतलब कंपनी डिपॉजिट लेने वाली है पब्लिक से, हाँ हाँ, उसको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। हाँ, अब उसने एडवर्टाइजमेंट इशू कर दी, उसमें ट्रस्टी का नाम डाल दिया, हाँ, ट्रस्टी 3 साल के लिए अपॉइंट किया था, अब उसको अगले साल उसी टाइम ही हटाना है या 1 साल 1 महीने में हटाना है, तो ये बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस कंसेंट से पास होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलो तो वापिस ओके, 3 आइटम ऐसी हैं जिनके लिए यूनानिमस कंसेंट लगती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें ध्यान में रहेंगी तो थोड़ा ग्रिप रहेगी कि 14 चीजें ऐसी इसको बोर्ड मीटिंग में करना पड़ता है, 3 चीजें ऐसी है इसके लिए यूनानिमस कंसेंट लगती है। वो क्या है 3 चीजें? एक ऐसे आदमी को जो ऑलरेडी एमडी है, मैनेजर है, उसको आप एमडी अपॉइंट कर रहे हो, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी की दे रहे हो, और तीसरा डिपॉजिटरी के ट्रस्टी को टर्म से पहले हटा रहे हो। तो इन 3 चीजों में कंपनी एक्ट के अंदर आपको यूनानिमस कंसेंट लगेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें से हो सकती है। हाँ, ऊपर
power to be exercised subject to passing of special resolution. Certain powers of the board are exercisable by the directors only with the consent of the company by way of a special resolution passed at a general meeting or through postal ballot. A list of powers to be exercised subject to passing of special resolution is given in Annexure 1D. तो 1D में जो आइटम लिखी हैं वो बोर्ड तब तक नहीं एक्सरसाइज कर सकता पावर, उस पर डिसीजन नहीं ले सकता जब तक शेयरहोल्डर ने स्पेशल रेजोल्यूशन ना पास किया। क्या है वो 1D? Powers to be exercised subject to passing of special resolution at general meeting or through postal ballot to sell, lease, or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the company, or where the company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any such undertaking. क्या कह रहा है? For the हाँ तो मतलब कोई भी अंडरटेकिंग हो कंपनी की, अगर उसको बेचना हो या लीज पे देना हो तो it has to be done only through a special resolution. होल और सब्सटेंशियली होल का क्या मतलब? Whole or हाँ, explanation for the purposes of this clause. Undertaking तो पहले पैराग्राफ को पूरा पढ़ो और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करो। To sell, lease or otherwise dispose of whole or substantially the whole. Whole मतलब पूरी undertaking. Substantially मतलब एक threshold है which to treat it as substantial, but less than the whole. Or where the company owns more than one undertaking. तो अगर एक से ज्यादा हो तो वो या whole से कम उसको sell या dispose of करना. फिर explanation for the purposes lease or dispose of the whole. आगे बढ़ो मत जब तक समझाऊंगा कैसी क्या पावर है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन हाँ, so ये this power can be exercised, or this is special resolution which can be exercised only if it is passed by the members of the company. क्या है ये पावर? एक वर्ड में स्पेशल रेजोल्यूशन ना? स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या पावर है? क्या किस चीज का रेजोल्यूशन है? क्या है अथॉरिटी? टू डिस्पोज ऑफ, सेल, लीज। एग्जांपल ले लो, समझो एक अगरबत्ती वाली एग्जांपल। हाँ मतलब एग्जांपल जैसे वेदांता लिमिटेड है, सो इट हैज एन अंडरटेकिंग ऑफ जिंक, so it is selling of the undertaking of zinc, producing zinc. So it is leasing and disposing of that zinc undertaking. लीजिंग के लिए है क्या? बार-बार आप लीजिंग पे रुके हुए। नहीं, selling it is deciding to sell, lease or dispose of the whole. पर सर sell और dispose में फर्क क्या है कि दोनों अलग-अलग दिया हुआ है? तो आपने किसी को मॉर्गेज कर दिया परमानेंटली। हाँ। डिस्पोजल वाइडर टर्म है सेल से। अच्छा। आपने ट्रांसफर कर दिया, राइट्स नहीं दिए। मैनेजमेंट राइट पूरे ट्रांसफर कर दिए, आपके हाथ से निकाल दिया। ओके। फिनिश कर दिया आपने प्रॉपर्टी, सेल भी नहीं की, तोड़ दिया आपने, प्लांट पूरा बम से उड़वा दिया। ओके। तो उसमें डिस्पोजल कवर होता है बम से उड़ाने में। हाँ। और सेल मतलब गिफ्ट सेल होती है। अगर आपने गिफ्ट कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, हाँ, नहीं तो वो सेल हो जाती है ना, क्योंकि आप सब कुछ अब राइट्स। अगर एक कंपनी अपना जो मेन बिजनेस है जहाँ से बिजनेस कमा रही है, अगर उसको बेचना चाहती है तो पैसा तो शेयर होल्डर का है, बोर्ड कैसे बेच देगा? इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर उसको ओके देना है, तभी जाके आप बोर्ड कोई चीज बेच सकता है, क्योंकि बोर्ड शेयर होल्डर के लिए कर रहा है, बोर्ड मालिक नहीं है। अच्छा। तो ये वो सब चीजें हैं जहाँ पे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब फंड शेयर होल्डर के। कैसा आप कंपनी की शेयर होल्डर हो, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो बिजनेस है उसको बेच दिया बिना आपसे पूछे, चलेगा? आपको पैसा दे दिया, नहीं लीज किसके पे लिए दे बेचा? दिया, नहीं कर सकते, 2 साल की लीज पे दे दिया।
बिना आपसे पूछे, चलेगा आपको? नहीं नहीं, मतलब क्यों बेचा, मेन बिजनेस है कर तो। दिया, अबंडन कर दिया, डिस्पोजल में तो हाँ। कुछ भी, डिस्पोजल बाय टर्म। हम्म। इसलिए ठीक है। ये सेक्शन बोलता है कि ऐसी कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स हैं वो बोर्ड हम्म। तभी कर पाए जब शेयरहोल्डर हम्म। स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूवल दे। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में जाओ, अंडरटेकिंग कहते हैं किसको? Hmm. For the purposes of this clause, undertaking shall mean an undertaking in which the investment of the company exceeds 20% of its net worth as per the audited balance sheet of the preceding financial year, or an undertaking which generates 20% of the total income of the company during the previous financial year. आई थिंक रूपाली ये समझा पाएगी। प्रीता रिपीट करोगी क्या? नहीं नहीं, हाँ, तो समझा, रिपीट क्यों करेंगे? क्या क्या? undertaking, meaning of undertaking. नहीं तो रूपाली से बुलवाओ सर। Undertaking shall mean an undertaking. Undertaking shall mean an बिना undertaking. देखे भी बोल दे, अभी किया था तूने हफ्ता पहले, पढ़ने तो इसलिए दो। रूपाली बता देगी ऐसे। कमेंट क्यों डाल रही है? नहीं सर। बता, समझा क्या कह रहे हैं, अंडरटेकिंग क्या होती है? पढ़ने तो दे नहीं रही है लड़की। हम्म? Exceeds 20% of net worth as per audited balance. हाँ हाँ समझाओ, एग्जांपल देके समझाओ क्या है अंडरटेकिंग। हाँ, मतलब कंपनी का एक अंडरटेकिंग है या फिर सब्सिडियरी है जिसमें जो कंपनी के पूरे रेवेन्यू का 20% है। shall mean undertaking in which 20% investment of the company exceeds 20%, और ये हटाओ ना, कर्सर हटाओ ना, हाँ। of its net worth as per the audited balance sheet of the preceding financial year, or an undertaking which generates 20% of the total income. मतलब आपको consolidated net worth और consolidated रेवेन्यू देखने का है, इनकम देखने का है। उसका अगर एक अंडरटेकिंग उसका 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इट बिकम्स अंडरटेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा था उसमें, और आपकी वो पर्टिकुलर अंडरटेकिंग आपकी इनकम का 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, आइदर ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो अंडरटेकिंग इसको आपको डिस्पोज करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन। और सब्सटेंशियली द होल क्या है? The expression substantially the whole of the undertaking in any financial year shall mean 20% or more of the value of the undertaking as per the audited balance sheet of the preceding financial year. ठीक है। अब एक ऐसा है कि आपकी एक डिवीजन है, उसका 20% हिस्सा बेच रहे हो, हाँ। और वो डिवीजन आपकी टोटल इनकम का 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी अंडरटेकिंग माना जाएगा। Okay. एक कंपनी है, उसकी अगरबत्ती बनाने की डिवीजन है, जो पूरी 100 करोड़ की सेल में 25 करोड़ कंट्रीब्यूट करती है। और उस अगरबत्ती वाली की कंपनी का आप 20% से ज्यादा स्टेक किसी को बेच दो, राइट, तो भी आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, पूरी की पूरी बेच दो तो भी आपको शेयर, मतलब 25 करोड़ का 20% से ज्यादा अगर आप बेच रहे हो तो भी। अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में घुस गए कि वो अंडरटेकिंग हुई कि नहीं। अगर अगरबत्ती की डिवीजन खाली 5 करोड़ ही कंट्रीब्यूट करती है टोटल सेल का 100 करोड़ में से, तो 5% हुआ, तो उसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन वो टोटल सेल का 25 करोड़ कर रही है कंट्रीब्यूट, तो 25% सेल आपकी वहीं से आ रही है। तो आप यस, इसको बेचना चाहते हो या इसका 20% से ज्यादा हिस्सा बेचना चाहते हो, दोनों केसेस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब आप 25 करोड़ का अंडरटेकिंग बेचना चाहते हैं या 25 करोड़ के अंडरटेकिंग का 20% से ज्यादा बेचना चाह रहे हैं ऐसे? 25 करोड़ टर्नओवर हो गया ना, उस अंडरटेकिंग का 20% से ज्यादा बेचना चाहते सॉरी सर, आपकी आवाज कट गई। आप टर्नओवर पे जो क्राइटेरिया होगा ना, अगर उस अंडरटेकिंग की वैल्यू आज के दिन में 40 करोड़ है, अच्छा, ओके, तो उसका क्या है 20%। बेचना चाह रहे हैं आप 20% स्टेक डाइल्यूट कर देते हो उसमें, वो भी डिस्पोजल में हो जाएगा। तो समरी में क्या बोल गया कि अगर आप कोई सेल करना चाहते हो, लीज करना चाहते हो, मतलब अंडरटेकिंग डिसाइड करने के लिए आपको वो कंपनी का बैलेंस शीट देखना नेटवर्क या है, टर्नओवर का और सब क्राइटेरिया देखना है। हाँ, और सब्सटेंशियली डिसाइड करने के लिए वो जो अंडरटेकिंग है उसका वैल्यू देखना है। तो अगर वो सब्सिडियरी है तो उसका बैलेंस शीट आपको देखना है। ठीक है, बट सर वो अंडरटेकिंग एक अलग सब्सिडियरी ना होके एक अलग डिपार्टमेंट है कंपनी का या फिर डिवीजन है, वैल्यू आप कैसे तो दोगे, इन उसके केस सेट की वैल्यू। उसका अलग से अकाउंट। अगर कंपनी एक ही बिजनेस में 15 कर रही है तो आप सेगमेंट रेवेन्यू बनाते हो ना, सेगमेंट वाइज। सेगमेंट, यस यस। ठीक तो है। अंडरटेकिंग मतलब सेगमेंट या सब्सिडरी ना, या डिवीजन। दोनों तरीके हो सकता है ना। अगर आप सब्सिडरी नहीं करते हो, एक ही रिलायंस एक ही नाम के अंदर सब बेचता है, तो उसके डिफरेंट सेगमेंट है, पेट्रो गैस सेगमेंट, दिस सेगमेंट, दैट सेगमेंट, तो उसमें से अगर कोई हिस्सा बेचेगा तो उसको लगेगा। हाँ, क्लियर है कि ये यस। 180 180। हाँ, Nothing in clause A above shall affect the title of a buyer or other person who buys or takes on lease any property, investment, or undertaking as referred to therein in good faith, or the sale or lease of any property of the company where the ordinary business of the company consists of or comprises such selling or leasing. फिर तो जो any खरीदता है, आपने हाँ, रेजोल्यूशन पास नहीं किया, लेकिन सामने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं। अच्छा, so if no resolution passed, आपने then बिना title रेजोल्यूशन को बेच दिया, उसने गुड फेथ में ले लिया, तो उसके टाइटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको गुड टाइटल मिलेगा, जो कंसिक्वेंस है वो आपको देखना है, आपको और आपकी करना है। get good, ठीक है। फिर any special resolution conveying consent of the company as aforesaid may stipulate such conditions as may be specified therein, including conditions regarding the use, disposal, or investment of the sale proceeds, which may result from the transaction. However, conditions so stipulated shall not be deemed to authorize the company to effect any reduction in its capital except in accordance with the applicable provisions contained in the Act. जब आप डिस्पोजल करोगे तो पैसा मिलेगा, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, उसमें शेयर होल्डर ये कंडीशन डाल सकते हैं कि इस पैसे को आपको कैसे यूज करना है। लेकिन नहीं, आप मैं ये इलेक्शन पॉइंट नहीं समझी। मतलब अगर पास हो गया रेजोल्यूशन, पास रेजोल्यूशन में पास हो गया, पैसे का हाँ, बोर्ड कुछ जुआ खेल ले। हम्म, हाँ, अच्छा, जुआ नहीं खेल, तो शेयर होल्डर ही बोल देंगे कि ये पैसा जो यूज आया है आपके पास आएगा, हम्म, उसको इसके लिए यूज करना, ऐसा रेजोल्यूशन में भी लिख सकते हैं। तो बोर्ड को वैसे ही काम करना है। okay. Money is to be used. अगर आपने 100 करोड़ रुपए की हम्म, कोई प्रॉपर्टी वाले हो, तो 100 करोड़ का क्या करना है वो शेयर होल्डर बता सकते हैं। अच्छा, नहीं बताएं क्या बोर्ड को? नहीं, पर ये रिडक्शन टू इफेक्ट एनी रिडक्शन इन इट्स अगर आप कैपिटल। कोई चीज बेच रहे हो और आप अपनी कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते, पेड अप कैपिटल हाँ, रिड्यूस, उसको आपको सेक्शन जो है उसके हिसाब से ही जाना है। ओके, ठीक तो है। शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते कि पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल स्टैंड रिड्यूस बाय 2 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, वो हम्म, सेक्शन के हिसाब से जाना है। हम्म, to reduce better, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, टू रिडक्शन ऑफ शेयर इन्वेस्ट,
एनसीएलटी के थ्रू ही होता है, अच्छा। पिटीशन डाल के। तो कंपनी सीओ मोटो अपनी कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर बायबैक। थ्रू एनसीएलटी, ठीक है। 1 मिनट से कम रह गया, बाकी अगले सेशन में कंटिन्यू करो 5 मिनट में। ठीक है।